8 میں سے 7 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پلیس کیے گئے ہیں، خود لڑ رہے ہیں. اور ایک جو نشست ہے ملتان ویلی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملتان ویلی نشست پر شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو ہیں وہ خود الیکشن لڑ رہی ہیں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے مد مقابل. تو سب سے پہلے ملتانی کے حلقے کی بات کر لیتے ہیں. دونوں جانب پی ٹی آئی ڈائناسٹک پالیٹکس کی مخالفت کرتی آئی ہے، لیکن چیئرمین مہربان قریشی کو وہاں سے پلیس کیا گیا ہے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو؟ وجیب، پہلے تو آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں. میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جو ملیر والا واقعہ ہے اس کا ورژن لینے کی کوشش کی، تو وقار میدی صاحب نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ جو بلال ان کے ساتھی زخمی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ دراصل ان کا تعلق اس حلقے سے نہیں تھا، اور وہ غازی ٹاؤن کے علاقے کے پولنگ اسٹیشن پر آئے تھے، جس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اعتراض کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایم پی ایز ہیں اور ان کا اس حلقے سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ تو میں ہوئی اور پھر وہ لڑائی جھگڑا ہوا، لیکن بہرحال بلال زخمی ہوئے ہیں اس لیے. اور یہ جو اگر ان کی ناک پہ فریکچر ہوا ہے تو یقیناً یہ 302 کا کیس بھی بن سکتا ہے. اچھا مرزا صاحب، پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ہوا کیا ہے. جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا انہیں بتائیں کہ این اے 237 ملیر، جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، بلال غفار جو کہ ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، غازی بروہی گوٹ میں ملنے گئے وہاں پر لوکل ایم پی اے جو ہیں ان سے، اور اس دوران کچھ جھگڑا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے حامیوں کا ایم پی اے بلال غفار کے ساتھ، جس میں بلال غفار کے زخمی ہونے کی خبریں ہمارے پاس ہیں. ویژول اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ بلال غفار گڈ فیتھ میں ایک اچھا جسر دینے کے لیے ملاقات کے لیے گئے تھے اور ان پر حملہ کر دیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا. ایک خاتون بھی ان کے ہمراہ جو ہے وہ معمولی زخمی ہوئی ہیں. یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ بلال غفار کا کے سر میں فریکچر ہے، ان کی ناک پر فریکچر ہے، جلد ہی انہیں اے او کلینک شفٹ کر دیا جائے گا. مطلب صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ ان سے جو جھگڑا ہوا اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی اور حلقے کے ایم پی اے تھے اور یہاں غیر ضروری طور پر پائے گئے، اس لیے جھگڑا ہو گیا. جی، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ چونکہ اس حلقے میں ایک پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں آئے تھے تو اس پہ اعتراض کیا گیا ان کی موجودگی پہ. تو اس بات پہ وہاں ورکرز کے درمیان جو ہے وہ ایک پہلے جس طرح ہوتا ہے تکرار ہوئی، ان کو واپس جانے کا کہا گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے جھگڑا ہوا ہے. لیکن اصل اہم بات یہ ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اگر ان کی ناک کی ہڈی پہ فریکچر ہوا ہے اور سر پہ زیادہ چوٹیں آئی ہیں تو مقدمہ تو بنتا ہے، اور مقدمہ میرا خیال ہے بننا بھی چاہیے. جہاں تک آپ نے اوور آل بات کی، دیکھیے اس وقت جو ملتان کا حلقہ ہے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور خود پی ٹی آئی کے اندر اس بات پہ بہت تحفظات تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوانا چاہیے تھا یا نہیں دلوانا چاہیے تھا. اور پی ٹی آئی کے کیونکہ ایک جو پرنسپل اصولی موقف ہے اس سے یہ انحراف ہے. اور لیکن یہ کہ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ حلقہ بھی اس کا رزلٹ بھی بہت اہم ہوگا. اور کیونکہ یاد ہے اگر آپ کو ماضی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا اور وہ ہار گئے تھے، اور اس پہ انہوں نے اس وقت الزام لگایا تھا جہانگیر ترین پہ. باقی دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے یہ الیکشن بہت زیادہ اہم ہے. اس کی دو تین بنیادی وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ کہ عمران خان خود لڑ رہے ہیں، اور ظاہر اس سے پہلے جو ان کے امیدوار وہاں سے جیتتے رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے. اور پچھلے 6 مہینے میں عمران خان سب سے زیادہ متحرک ہیں، پی ٹی آئی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، ان کے ووٹرز جو ہیں بہت چارجڈ ہیں. تو آج ان کو 2018 کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لینے چاہیے جن حلقوں سے وہ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ خود امیدوار ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت زیادہ پریسٹیجس ہے کہ اگر وہ حلقے میں سے 2-3 حلقے ہار جاتے ہیں تو ظاہر ہے سیٹ بیک ان کا ہوگا. پھر ان کو اس سے زیادہ ووٹ لینا ہے کیونکہ ان کی جو پورا بیانیہ ہے اس میں جو جان پڑے گی وہ اسی سے پڑے گی. اگر وہ 2-3 حلقے ہار جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا سیٹ بیک کے لیے. لیکن اس کے ساتھ پی ڈی ایم کے لیے یہ بھی بڑا امتحان ہے کیونکہ ان کی 11 جماعتیں مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ایک طرف غلام احمد بلور لڑ رہے ہیں، پھر ایمل ولی لڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے فیصل آباد میں عابد شیر علی لڑ رہے ہیں. لیکن کراچی کے جو 2 حلقے ہیں اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ ملیر میں پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے درمیان ہے، اور ٹی ایل پی کے لوگ کافی کانفیڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا ملیر میں ہمارا کورنگی کے مقابلے میں زیادہ کام ہے،
हालांकि पिछले बाई इलेक्शन जो हुए थे यहाँ कोरंगी में, लांडी कोरंगी में, उसमें मुश्किल से 65 वोट से एमक्यूएम जीती थी। इसी सीट पर अगर हम बात करें मौलवी साहब, तो ये माजी में रिवायती तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सीट रही है। शेर मोहम्मद बलोच और दीगर लोग यहाँ से एमपीए की नशिस्तें भी निकाल चुके हैं, सूबाई असेंबली की भी और कौमी असेंबली के हल्के भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीत चुकी है। तो आपको लग रहा है कि पीपुल्स पार्टी इस वक्त नेक टू नेक नहीं है पीटीआई से, बल्कि टीएलपी और पीटीआई का मुकाबला है? आपकी क्या राय है? नहीं, पीटीआई मलीर में पीपुल्स पार्टी, पीटीआई और टीएलपी का मुकाबला है, लेकिन टीएलपी का ख्याल है ये कि वो मलीर में बहुत ज्यादा, क्योंकि याद रखें मलीर में जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अर्बन सेंटर ज्यादा जो है लगता है मलीर में। लेकिन हकीम बलोच बहुत पुराने तजुर्बेकार सियासतदान हैं। 2013 में वो पीपुल्स पार्टी छोड़ गए थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और 2018 में जो इलेक्शन हुआ वो पीटीआई ने जीता। तो पीटीआई को, इमरान खान को, अगर डॉक्टर जमील पिछली मरतबा लड़े थे और जो है इस्तीफा दिया, तो अगर इमरान खान आज ये सीट हार जाते हैं मलीर की, तो ये दरअसल पीटीआई की शिकस्त होगी और पीटीआई का सेटबैक होगा। और पीपल्स पार्टी अगर ये नशिस्त जीत जाती है तो पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन जो उन्होंने 2018 में ली थी कि पीटीआई को जबरदस्ती इलेक्शन जितवाया गया था, वो विंडिकेट हो जाएगी। ठीक है मौलवी साहब, हमें अतर काज़मी साहब ने भी ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं? कहा जा रहा है कि आज का ज़िमनी इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेक और ब्रेक की हैसियत रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट तासर ये दे रही है कि अगर 8 के 8 हल्के भी तहरीक इंसाफ जीत जाए तो विफाक में जो हुकूमत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4, 2, 3 सीटें भी पीटीआई हार जाए तो जो बयानिया है इमरान खान का उसको सख्त धचका पहुंचेगा। आपकी राय? देखिए, ऑब्वियसली ये इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट है, खान साहब के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हुकूमत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि खान साहब ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले अगर मुझे पूरे मुल्क में वोट पड़ता है तो ये तासुर हम कायम कर सकते हैं कि जनाब हम कोई जत्था नहीं है, हमें अवामी सपोर्ट हासिल है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहना कि अगर हम कोई सीटें हार भी जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने की चीज ये है कि ये वो हल्के हैं जो बुनियादी तौर पर पीडीएम के हल्के हैं। 2008 में भी, 2013 में भी यहाँ पे पीडीएम जीती थी, 2018 में मामूली फर्क से यहाँ पे पीटीआई जीती और इसी वजह से इन हल्कों का इंतखाब किया गया। ये वो हल्के हैं जो 11 जमातों ने मिल के चुने हैं और उनका ख्याल है कि इसके अंदर हम इमरान खान साहब को शिकस्त दे सकते हैं। और इन हल्कों में, हर हल्के में, मासवाए पेशावर का जो हल्का है उसके अलावा हर हल्के में ऑलमोस्ट डबल वोट था 2018 में पीडीएम का। तो अगर इस दफा खान साहब बेशक हार जाते हैं लेकिन उनके वोट बैंक में इजाफा होता है, तो मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता अगर वो 2-3 हल्के हार भी जाएं तो उससे कोई फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज उनके वोट बैंक में इजाफा होता है। क्योंकि पिछली दफा वो हर जमात अपना इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन इस दफा तकरीबन 11 जमातें मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सियासत में ऑप्टिक्स भी चीज होते हैं। अगर खान साहब कुछ किसी जगह पे हारें तो यकीनन उनके कहा जाएगा कि जनाब वो जो उनकी पॉपुलैरिटी की वेव थी वो उस तरह नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता, दोनों सूरतों में अगर खान साहब जीतते हैं या हारते हैं उनको लॉन्ग मार्च का जवाब मिल जाएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे ज़िमनी इंतखाब की, जो कि पाकिस्तान के कौमी असेंबली के 8 हल्कों में हो रहे हैं। 3 पंजाब असेंबली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। मज़हर अब्बास साहब, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये फैक्ट मद्देनजर रखें कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बेशतर इंतखाब जो है 8 में से तकरीबन 6 उन्हीं सूबों में होने जा रहे हैं, फिर किस तरह आप देखते हैं? आपको लगता है उसके बावजूद भी, शिकस्त के बावजूद भी इमरान खान को सेटबैक नहीं होगा? देखिए, अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो भी हारेगा वो ये तो नहीं कह सकता कि जनाब मेरी फतह होगी है। अगर इंतखाबात में आपकी शिकस्त हुई है तो वो तो आपको मानना पड़ेगा, उसका नुकसान तो होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी एक फैक्ट है कि जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब के अंदर पीटीआई जीती थी और हुकूमत ने कहा था कि जनाब ये पीटीआई के अपने हल्के और अब अगेन इस तरह का तासुर दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि 3 सीटें जो पीपी की सीटें हैं, जो पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, वो तो वैसे ही नून लीग की हैं। उसके अलावा जो दूसरे हल्के हैं वो भी हुकूमत ने जिस तरह चुने हैं, वो मुबैना ऑडियोज भी हमने सुनी कि इन हल्कों के अंदर क्यों इंतखाब किया गया कि यहाँ पे इंतखाबात करवाए जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो किसी एक आधे हल्के या 2 में हार भी जाते हैं, अगर वो नहीं हारते तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा। इसलिए कि वहां पे पीडीएम के वोट ऑलमोस्ट डबल हैं और वो सारी जमातें मिलकर लड़ी हैं। अगर आप मुल्तान की मिसाल ले लें
पिछली दफा वहां पे कितने वोट पड़े थे पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कितने वोट पड़े थे। अगर वो दोनों के वोट आप मिला लें तो तकरीबन 1,20,000 के करीब उनका वोट है। इस दफा वो दोनों मिल के मेहरबानो साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर वहां पे मेहरबानो हार जाती हैं तो ये मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, ये नजर तो वही आ रहा है, लॉजिक तो यही कहता है कि वहां पे जीतना चाहिए हुकूमत। अच्छा अदर काजिम साहब, आपने मेहरबानो साहिबा की बात की, ये वाहिद सीट है 8 हलकों में जिसमें इमरान खान साहब ने खुद को प्लेस नहीं किया, अपने पेपर्स फाइल नहीं किए, बल्कि ये जिसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, मोरूसी सियासत कहते हैं, उसे इंडोर्स किया। पीटीआई के अंदरूनी हलकों ने भी एतराज किया कि क्या कोई और नहीं मिला था, कोई वर्कर नहीं था जिसको, तो आपको नहीं लगता कि आप दोष देंगे 11 जमाती इत्तेहाद को बजाय ये कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की सपोर्ट को इन केस ऑफ एनी अपसेट? देखिए ऑब्वियसली जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या मेहरबानो साहबा के अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए था, जरूर मिलना चाहिए था। और ये हमने केपीके में भी देखा कि परवेज खटक साहब ने उनकी फैमिली की ख्वातीन हो जाएं या रिश्तेदार हो जाएं वो आपको असेंबलियों में नजर आए, हर जगह पे ये अनफॉर्चुनेट चीज हमें नजर आती है और हर जमात के अंदर नजर आती है। लेकिन अगर पीटीआई कहती है कि वो इस मौरूसियत के खिलाफ है तो फिर किसी भी वर्कर को वो वहां से मिलना चाहिए था। पूरे मुल्तान में और कोई खातून नहीं है जो खड़ी हो सकती थी। नथिंग अगेंस्ट मेहरबानो साहिबा, वो बेहतरीन पॉलिटिशियन है, मैंने उनको सुना है, बड़ी अच्छी बात करती है। लेकिन यहाँ पे हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। हर सियासी जमात को सोचना चाहिए क्या हमजा के अलावा कोई और पंजाब में वज़ीर आला का कैंडिडेट नहीं हो सकता? क्या मुल्तान में कुरैशी या गिलानी फैमिली के अलावा कोई और बंदा सामने नहीं आ सकता पीपल्स पार्टी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से? तो ये इन प्रिंसिपल में आपके पॉइंट से 100% एग्री करता हूं। ठीक है, मतलब बस अब आपकी जानिब आते हैं। हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों की जो बहुत अहम है। एक पर इमरान खान बमुकाबला अहमद वली खान, एक पर इमरान खान बमुकाबला गुलाम अहमद बलोर, जबकि तीसरे जो हलका है जिसे हम कहेंगे NA-22 मर्दान 3 का जो हलका है, यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी दिलचस्प है। इमरान खान के मुकाबले में मोहम्मद कासिम साहब जो हैं JUI के, वो करीबी मुकाबला मुतवक्किल है, लेकिन भूलिए नहीं कि यहाँ से जमात इस्लामी ने भी मौलाना वासे को टिकट दिया है, मौलाना अब्दुल वासे को। तो आपको नहीं लगता कि ये 2 हलके छोड़कर यहां पर जो दीनी सोच रखने वाला वोटर है वो डिवाइड होगा मर्दान 3 पर? जी बिल्कुल वजीब, डिवाइड होगा। थोड़ी सी मैं बात कर लूं जो अभी अथर बात कर रहे थे। देखिए मोरूसी सियासत को हम जिस तरह डिफाइन करते हैं ना, ये दुनिया भर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि वहां आपको पहले पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है, फिर आपको पार्टी के अंदर एक्टिव होना पड़ता है, फिर नीचे से ऊपर आना पड़ता है। भले आप किसी के बेटे हों बेटी हों, तो यहां ये होता है कि यहां पैराट्रूपर्स हैं, जो पैराट्रूपर्स हैं वो आ गए, उनको आपने नॉमिनेट कर दिया। ये फर्क है जो पाक इंडिया और किसी हद तक बांग्लादेश में भी हमें नजर आता है। इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जो मोरूसियत है उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बाकी दुनिया में जो है उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। किसी को एकदम पुराने पार्टी लीडर को छोड़ के आप किसी बिल्कुल एक नए आदमी को ला के बैठा देते हैं क्योंकि किसी का बेटा बेटी है, तो वहां फिर सवाल ये उठते हैं। लेकिन जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में रिवायती तौर पे क्या होता रहा है। रिवायती तौर पे 2008-2013 से पहले कभी भी एक पार्टी अगला इलेक्शन नहीं जीतती थी, लेकिन ये पीटीआई ने इस डायनेमिक्स को थोड़ा सा तब्दील किया। 2013 में वो जीते तो कोएलिशन के साथ जीते थे, गवर्नमेंट बनाई थी जमात इस्लामी के साथ। लेकिन 2018 में पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेकर आई। तो अगर और अभी भी प्रेडिक्शन यही होती है कि पीटीआई अगला इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जीत जाएगी। लेकिन अगर आज वो 3 में से अगर फर्ज करें आप 1 नशिस्त हार जाते हैं, 2 नशिस्त हार जाते हैं, तो ये पीटीआई के लिए बड़ा सेटबैक होगा। नून लीग के लिए पंजाब में क्या मसला आ रहा है? नून लीग अभी भी जो जिमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई है, 20 में से 15 नशिस्तें, तो अगर आज भी उन्हें कौमी और सूबाई असम्बली की जो इलेक्शन हो रहे हैं जिमनी, अगर उन्हें शिकस्त होती है तो नून लीग के लिए अगला इलेक्शन पंजाब में बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। इसी तरह कराची में पीपल्स पार्टी ज्यादा इम्कान यह है कि शायद मलीर की सीट जो है पीटीआई जो है रीगेन कर ले, यानी 2018 में हार गए थे। लेकिन मुकाबला जो है, क्योंकि एमक्यूएम का एक तरफ एमक्यूएम लंदन का बॉयकॉट है, दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल बिखरी हुई है, तो जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इमरान खान के लिए इसलिए कम से कम 7 में से 5 नशिस्तें जीतना इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये 7 की 7 उनकी सीटें थी और उनके जो कैंडिडेट्स थे वो अदरवाइज 2018 में उनका मुकाबला बड़ा मुश्किल था।
آج عمران خان اس کے مقابلے میں اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ پچھلے 6 مہینے میں جو سڑکوں پہ ووٹر رہا ہے، جو سڑکوں پہ سپورٹر رہا ہے، وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نہیں رہا. اس طریقے سے مقابلہ اور پی ڈی ایم نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہی نہیں کیا. تو اس لیے عمران خان کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ سیٹیں جیتنا بہت ضروری ہے بلکہ ان کے ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بھی بہت ضروری ہے. تو امپورٹنٹ عمران خان کے لیے جیتنا ہر صورت میں ہے. مردان کی جو بات کی، مردان میں بالکل جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں وہ اسٹرانگ امیدوار ہیں، لیکن ریلیجیس ووٹ اگر ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچ سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا مکس جو ہے وہ نیریٹو ہے اس حوالے سے. تو میرا خیال میں جو بھی 7 اور 8 ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور 3 جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے الیکشن جو ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ٹریلر ہے اگلے عام انتخابات کا.